हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मित्रा जीएस फोरम में तुम्हारे सबाई के स्वागत জানাই। मित्रा जीएस फोरम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है ये इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर इन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया इसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे। যারা এই আগের ভিডিওটা দেখোনি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক প্ল্যানিং সে তারা এই ভিডিওটা গিয়ে দেখে নিও। তারপরে এই এমসিকিউ গুলো সলভ করো। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। In India, planned economy is based on. In India, planned economy is based on. किस प्लान के ऊपर इंडियन इकोनॉमी बेस्ड है? তাহলে কোন প্ল্যানের উপর কোন ইন্ডিয়াতে কোন ইকোনমিক প্ল্যান আমাদের চালু হয়েছে? আমাদের অ্যান্সার কি হবে? না, আমাদের যেটা অ্যান্সার হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিক্সড ইকোনমিক সিস্টেম। আমাদের এখানে মিক্সড ইকোনমিক সিস্টেম তোমার চালু আছে। তার মানে কি? এখানে দেখো, এখানে কি আছে আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে? এখানে প্রাইভেট আমাদের একদিকে আমাদের যেমন পাবলিক আছে, একদিকে যেমন পাবলিক আছে তেমনি আরেকদিকে কি আছে? প্রাইভেট আছে। একদিকে যেমन गवर्नमेंट আছে একদিকে তেমন प्राइवेट আছে। तो हम लोग के यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या है? एक तरफ तो पब्लिक होगा मतलब गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट की कहते हैं, और एक तरफ प्राइवेट होगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हम लोगों के देश में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया हैज ए मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम विच कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। द गवर्नमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन strategic sector like defense, railways, and public utilities, while the private enterprises operate in other areas. This approach allows for the balance between the social welfare and economic growth. ठीक है, तो इंडिया में पब्लिक एवं प्राइवेट दोनों ही सेक्टर यहाँ पर मौजूद है। गवर्नमेंट जैसे पब्लिक सेक्टर मैंने अभी अभी बोला कि पब्लिक सेक्टर कौन से चीजें हैं, जैसे कि लाइक डिफेंस में हो गया, रेलवे में हो गया, পাবলিক ইউটিলিটিজ में हो गया। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কি কি করা হচ্ছে? ডিফেন্স করা হচ্ছে, রেলওয়ে করা হচ্ছে, পাবলিক করা হচ্ছে। ঠিক সেরকম ভাবে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজেস আমাদের প্রাইভেট যারা রয়েছে তারা আমাদের দেশে ইয়ে করছে, যেমন টাটা, বিড়লা এরা রয়েছে, তাই না? তো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লেনেশন। এরপরে দেখো, যেমন আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল গান্ধীয়ান সিস্টেম। গান্ধীয়ান সিস্টেমে কি হচ্ছে না, অলদো মহাত্মা গান্ধী आइडिया इन्फ्लुएंस इंडियाज इकोनॉमिक थिंकिंग। तो महात्मा गांधी के जो थिंकिंग था, जो आइडिया था, वो हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस तो किया, लेकिन देयर इज नॉट ए स्पेसिफिक गांधीयन सिस्टम दैट डिफाइंस द इकोनॉमिक्स कंट्री। यहाँ गांधीयन सिस्टम को স্পেসিফিক্যালি जो গান্ধিয়ান সিস্টেম है उसको हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो আমরা কি বলতে চাইছি না, গান্ধিয়ান সিস্টেমে দেখো আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমির উপরে তো ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, বাট আমাদের কিন্তু ইকোনমি, আমাদের দেশের যে ইকোনমি সেটা কিন্তু পুরোপুরি ভাবে গান্ধিয়ান সিস্টেমকে ফলো করেনি। এরপরে 2 নম্বরে অপশনে দেখো সোশ্যালিস্ট সিস্টেম রয়েছে। সোশ্যালিস্ট সিস্টেম বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? ইন্ডিয়া হ্যাজ সোশ্যালিস্ট এলিমেন্ট, ইন্ডিয়া হ্যাজ এ সোশ্যালিস্ট এলিমেন্ট লাইক পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং। ঠিক আছে, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং রয়েছে एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, बट इट इज नॉट ए प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी। ताहले हम लोग का जो देश है यहाँ पर तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी है, लेकिन ये पूरी तरह से प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तीसरे नंबर पे द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। इंडिया इज नॉट ए प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो इंडिया यहाँ पर भी प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है, as the government plays a significant role in strategic sector and regulates the economy। तो यहाँ पर क्या बोला गया था? गवर्नमेंट बोला गया कि गवर्नमेंट हम लोग के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और इकोनॉमी को भी रेगुलेट करता है। तो আমাদের যে ক্যাপিটাল সিস্টেম রয়েছে না, সেই ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম আমরাও কিন্তু পুরোপুরি ফলো করিনি।
কেন না এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক বিভিন্ন ধরনের সেক্টর রয়েছে, যেমন আমাদের ডিফেন্স রয়েছে, তাই না, রেলওয়ে রয়েছে, এগুলোতে কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের শেয়ার রয়েছে বা গভর্নমেন্ট এটাকে কন্ট্রোল করছে এবং ইকোনমিটাকে রেগুলেট করছে। ক্লিয়ার? নেক্সট নেক্সট কি আছে? দ্য গান্ধিয়ান প্ল্যান। The Gandhian plan was expounded in 1944 by কার দ্বারা গান্ধিয়ান প্ল্যান কে एक्सपाउंड करा है বা देवा है? किसके द्वारा गांधीयन प्लान दिया गया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्री राम नारायण अग्रवाल। आंसर होगा श्री राम नारायण अग्रवाल। चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। Sriman Narayan Agarwal, but more specifically, Gandhian plan was expanded by the Sriman Narayan Agarwal in 1944 as per the suggestion of Mahatma Gandhi। ठीक है, यहाँ पर गांधीयन प्लान एम टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी विद ए फोकस ऑन विलेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? गांधीयन प्लान का एम क्या था? তাহলে গান্ধিয়ান প্ল্যানের যে এমটা কি ছিল? ক্রিয়েট এ ডিসেন্ট্রালাইজ, একটা ডিসেন্ট্রালাইজ করা, ঠিক আছে, একদম নিচে স্তরে গ্রাউন্ড লেভেলে এদেরকে নিয়ে আসা, ঠিক है, ग्राउंड लेवल पे चीजों को लेकर आना, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर होना, इकोनॉमी विद ए फोकस ऑन विलेज इंडस्ट्री, विलेज की जो इंडस्ट्रीज है वो सारी चीजें, एग्रीकल्चर एंड मैनुअल लेबर, इन सब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ रिलायंस, हम लोगों को लोकल मेड इन इंडिया, ये इस सारे ऐसे चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट व ध्यान देना पड़ेगा। sought to reduce the India's dependence on industrialization or urbanization। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का एक ऑप्शन था यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण क्या हुआ? इन्होंने सर्वोदया प्लान दिया। सर्वोदया कब प्लान दिया? 1950 में। देखना नोट में इन सारे प्लान के बारे में डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, वीडियो देख लेना, जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले वीडियो देख लेना। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट प्लानिंग, प्री रिक्विजिट्स फॉर प्लानिंग इट इज। पहले प्री रिक्विजिट प्लानिंग किसे कहा जाता है? एक नंबर फॉर बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करना हो गया। 2 नंबर for extending the benefit of development in an even manner। 3 number the for focusing on removal of religion disparities। 4 number for maximizing the utilization of available resources of these। यानी कि प्लानिंग करने से पहले प्री रिक्विजिट क्या होता है, प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चीजें। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप। नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा बनाया गया है? आंसर क्या होगा? नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा बनाया गया है? एस सी बोस, एस सी बोस। ये एस सी बोस 1938 में आईएनसी, आईएनसी का प्रेसिडेंट था। एस सी बोस आईएनसी का प्रेसिडेंट था। हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली में, प्रीवियस वीडियो में, कि यहाँ से हम लोग को नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी यहाँ से बनाया गया था। एंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन व प्रेसिडेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? विच was the final authority in India to approve the 5 years plan। 5 years plan को कौन फाइनल अप्रूवल देता है? कौन अप्रूवल देता है? फाइनल अप्रूवल। हम लोगों ने एक चीज को बारे में डिस्कस किया था, क्या? फर्स्ट प्लान में
इंडियन प्लानिंग कमीशन, तो इंडियन प्लानिंग कमीशन ने इंडियन प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था 1951 में फर्स्ट प्लान तो रिलीज कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट को बुलाया नहीं गया। ठीक है, तो ये एक फॉल्ट हो गया था। इसको सुधारने के लिए 1952 में एनडीसी, ठीक है, 1952 में एनडीसी को बनाया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका आंसर क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें मैंने बोल दिया आपको, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन, गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड इन इंडिया। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना कि जब देश देश का बंटवारा हुआ, एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक तरफ बीच में भारत हो गया, और एक तरफ पूर्वी ईस्ट पाकिस्तान हो गया था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान इधर वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और बीच में हम लोगों का देश इंडिया हो गया। तो खेती बाड़ी का जो जितनी भी चीजें था ना, मतलब जितने भी उपजाऊ जमीन था, वो तो यहाँ यहाँ चला गया, बीच में भारत हो गया। तो उस टाइम पे फिर बंटवारा हुआ, बंटवारे के चलते यहाँ के लोग यहाँ आ गया, यहाँ का लोग यहाँ आ गया। तो ऐसे चीजों के लिए पूरे देश में खाद्यान्न संकट हो गया। इससे निपटने के लिए क्या किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में की करा हलो ना, एग्रीकल्चर के यानी कि कृषि को प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चर के प्रमोट करा हलो। তাহলে এই এগ্রিকালচার কে প্রমোট করা হলো, তো এগ্রিকালচার করতে গেলে আমাদের ড্যাম বা ইরিগেশন তো লাগবে, তাই না? डैम বা इरिगेशन तो लगेगा, डैम लगेगा, इरिगेशन लगेगा। तो हम लोग का फर्स्ट जो प्लान था उसका प्रायोरिटी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी था, वो डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूडिंग इरिगेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किस तहत बनाया गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बना कब। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बना 1956 को। अब एक बात समझ लीजिए, 1951 से लेकर 56 तक हो गया आपका फर्स्ट प्लान, ठीक है, और 56 से लेकर आपका 61 तक हो गया सेकंड प्लान। इसी प्लान के समय में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये एस्टेब्लिश हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का कमीशन का एम क्या था, प्रमोट करना एंड डेवलप करना, किसको, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को, ऑब्वियसली। दूसरा नंबर पर देखो, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, इनकम अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, তাহলে রুরাল যে এরিয়াগুলোতে ছিল সেগুলোতে যাতে ইনকাম অপরচুনিটি বাড়ানো যায়। इनकरेज द सेल्फ रिलायंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो आत्मनिर्भरता को बढ़ाना ये इसका प्राथमिकता। তাহলে আত্মনির্ভরতা নির্ভর করা আমাদের এটা প্রাথমিক এনকারেজ করা হচ্ছে, এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন, বিকেন্দ্রীকরণ যেটা আমরা বলবো বাংলায়, হ্যাঁ, ডিসেন্ট্রালাইজেশন करना, विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्लान emphasize the development of cottage industries including khadi and village industry to reduce the dependency on industrial importance, uh, foster rural development and employment, preserve the traditional craft and skill। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो थर्ड प्लान में क्या हुआ 1961 से लेकर 66, थर्ड प्लान हो गया 1961 से 66। यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ
एग्रीकल्चर भी यहाँ पर प्रमोट किया गया था, एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया गया था, ठीक है। और सेकंड प्लान में सिर्फ रैपिड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही प्रमोट किया गया था। और फोर्थ प्लान में एम्फसाइज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट, which plan among the following declared its objective of self-reliance and zero net foreign aid? जीरो नेट फॉरेन एड, इसको देखिए, एक तो पॉइंट हो गया ये वाला जीरो नेट फॉरेन एड, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सेल्फ रिलायंस। 2 नंबर पॉइंट हो गया सेल्फ रिलायंस। बोला गया है कि किस प्लान में ऑब्जेक्टिव था, किस प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था, ये दोनों কোন প্ল্যানের অবজেক্টিভ ছিল, এই সেলফ রিলায়েন্স এবং আমাদের জিরো নেট ফরেন এইড, এটা। তাহলে অ্যানসার কি হতে পারে, অ্যানসার আমাদের হবে ফোর্থ 5 ইয়ার প্ল্যান। তাহলে ফোর্থ 5 ইয়ার প্ল্যান আমাদের কত না 69 থেকে 74 অবধি আমাদের ফোর্থ 5 ইয়ার প্ল্যান চলেছিল। সেলফ রিলায়েন্স এন্ড জিরো নেট ফরেন এইড ছিল এই প্ল্যান। রিডিউস ডিপেন্ডেন্সি অন ফরেন এইড, আমাদের সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইন ফুড প্রোডাকশন, ডেভেলপমেন্ট ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এনহ্যান্স ইন্ডিয়াজ ইকোনমিक इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान तो पहले डिस्कस हो गया था, थर्ड प्लान भी हम लोग डिस्कस कर लिए। और फिफ्थ प्लान कब था, 1974 से 79 तक, फोकस ऑन ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी एलिवेशन। यहीं पे गरीबी हटाओ स्लोगन यहाँ पर दिया गया था, गरीबी हटाओ स्लोगन यहाँ पर दिया गया था फिफ्थ प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में consider the following statement regarding the Indian planning। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, क्या स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट नंबर 1 में देखिए, the second 5 year plan emphasized on the establishment of heavy industry। the second 5 year plan emphasized on the establishment of heavy industry। चलिए सेकंड प्लान में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि हेवी इंडस्ट्री यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद 2 नंबर में देख लेते हैं द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बोला गया है जो 61 से लेकर 66 तक था। प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस substitution as a strategy for industrialization, substitution as a strategy for industrialization। तो इन दोनों में कौन सा बोला गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ए का 2 पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला करेक्ट, क्यों क्यों करेक्ट है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान में एम्फसाइज तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि हेवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, मशीनरी, फर्टिलाइजर, ये सब का ग्रोथ हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट का क्यों कर रहे थे कि थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से लेकर 66 तक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज ए स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। import substitution as a strategy for industrialization। फोकसिंग क्या क्या फोकस किया गया था, रिप्लेसिंग इंपोर्टेड गुड विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वन, यानी कि हम लोग जो इंपोर्ट बाहर से इंपोर्ट करते थे जो भारत में अब वो बनाएंगे। इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू मीट द लोकल डिमांड, हम लोग के देश में जो जितने भी लोकल डिमांड है तो डोमेस्टिक जैसे इंडस्ट्री को जिससे बढ़ावा दिया जा सके उसको लिए हम लोग बाहर से नहीं देश में ही इंडस्ट्री बनाने के लिए इनकरेज करेंगे लोगों को। रिड्यूसिंग द फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, यानी कि हम लोग जो बाहर से इंपोर्ट करते थे और यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे तो हम लोग क्या चाहते थे कि फॉरेन जो एक्सचेंज था वो आउटफ्लो कम हो, माने बाहर की तरफ जो हम लोग बाहर की तरफ जो जब चीजें खरीदते थे
ठीक है, जब चीजें खरीदते तो हमें डॉलर देना पड़ता था, तो वो कम हो जाए। तो मतलब एक तरफ से इम्पोर्ट আমাদের কম যেন হয়। नेक्स्ट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। अब तो ये तो मुंह जबानी याद हो गया सबको, 1951 टू 52 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर इसमें ध्यान दिया गया था, इरिगेशन के उस पर इसका ध्यान दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इरिगेशन प्रोजेक्ट था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था, सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन हेल्थ, इसके ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसके ऊपर द प्लानिंग डेवलपमेंट मॉडल वाज अडोप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, कहां से, कब, मतलब ये कब अडॉप्ट किया गया था, प्लान डेवलपमेंट मॉडल। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1951 को प्लान डेवलपमेंट मॉडल का इंट्रोड्यूस किया गया, अडॉप्ट किया गया। इंडिया adopted the plan development model with the launch of the first 5 ईयर plan on 1 April 1951. This marked a significant shift from the pre-independence era focusing, अब focusing क्या था, state led economic development, centralized planning, public sector investment, social welfare program, ये सारे के सारे फोकसिंग था किसका, प्लान डेवलपमेंट मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 12 में, 12 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। हाईएस्ट ग्रोथ, इसमें से किसमें हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 11th प्लान। 11th प्लान में, अब ये 11th प्लान कब हुआ था, 11th प्लान क्या हुआ था, 2007 में से लेकर 2012 तक। ठीक है, 11th प्लान हो गया था 2007 से लेकर 2012 तक। तो यहाँ पर देखो 8th प्लान कब हुआ था, 1992 से लेकर 97 तक। 9th प्लान इसके बाद ही होगा, 1997 से लेकर 2002 तक। 10th प्लान यहाँ लिख देते हैं, 10th प्लान कब हुआ था, 2002 से 2007 तक। तो 11th प्लान हो गया 2007 से लेकर 2012 तक। तो ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रोथ रेट को क्या था, एवरेज जो एनुअल ग्रोथ रेट था इस टाइम पे, तो हम लोगों का 8.4% थी। তাহলে 8.4% এখানে দিস প্ল্যান ফোকাস কি কি ছিল না, ইনক্লুসিভ গ্রোথ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান रिसोर्सेज डेवलपमेंट ছিল, ইনোভেশন एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीजों के ऊपर फोकस করা হয়েছিল। 8 প্ল্যানে তো এখানে আমরা সালটা তো দেখলাম, এভারেজ গ্রোথ রেট কত ছিল না 6.8%, 9th প্ল্যানে 5.5%, 10th প্ল্যানে 7.9%, 11th প্ল্যানে 8.4%। What is the growth rate aimed at the 8 5 ईयर प्लान। तो 8 5 ईयर প্ল্যানে एम কত ছিল, গ্রোথ রেট का एम कितना था, ग्रोथ रेट का एम कितना था। आंसर क्या होगा, 5.6%, 5.6%, ऑप्शन नंबर ए 5.6%। 8 5 प्लान में फोकस कौन सा था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ होगा, उस टाइम पे हो गया। ठीक है, हम लोग LPG मॉडल लेकर आ चुके थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे चीजें हो गया। इसके बाद द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड कौन सा था, 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड कौन सा था, थोड़ा देर पहले डिस्कस किया,
2007 से लेकर 2012 11 5 ইয়ার প্ল্যানের আমাদের পিরিয়ডটা জিজ্ঞাসা করছে, তাহলে 2007 থেকে 2012 একটু আগে আমরা দেখলাম। ফোকাস কি ছিল 11 5 ইয়ার প্ল্যানে, আমাদের ফোকাস কি ছিল আরেকবার দেখানো, ইনক্লুসিভ গ্রোথ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ইনোভেশন এন্ড রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। তাহলে এভারেজ অ্যানুয়াল গ্রোথ আমাদের হয়ে যাচ্ছে এখানে, the plan achieve হচ্ছে to achieve an average annual growth rate of 9%, but ultimately achieve 8.4% due to various factors including global financial crisis. Question number 15. The second 5 year plan was based on which model? कौन से मॉडल के ऊपर सेकंड 5 year प्लान तैयार किया गया था? তাহলে কোন প্ল্যানের উপর সেকেন্ড 5 year প্ল্যান কোন মডেলের উপর তৈরি করা হয়েছে? অ্যানসার কি হবে? অ্যানসার হচ্ছে আমাদের ডি নাম্বার মহলানবিশ मॉडल। आंसर हो गया मौलानबी मॉडल। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया सेकंड 5 ईयर प्लान का, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया था, स्टेट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ किया गया था, सही है ना। इसके बाद अंडर द 5 year प्लान was the decision to establish a socialistic pattern of society taken. socialistic pattern of society कौन से प्लान में लिया गया था? कौन से 5 year प्लान में ये लिया गया था? आंसर होगा क्या? आंसर होगा सेकेंड 5 year प्लान। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो फोकस फिर से वही चीजें सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, the planning in India, the real sense began with the second 5 year plan. Who was the architecture of the Indian planning? आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग किसे कहा जाता है सेकेंड 5 year प्लान का? आंसर वही होगा, बताइए। आंसर होगा क्या? पीसी महालानविश मॉडल, पीसी महालानविश मॉडल। ठीक है, सेकेंड 5 year प्लान के बारे में तो बता ही चुका हूं, वही सब चीजें हैं। नेक्स्ट हो गया द कोर सेक्टर इन प्लानिंग मीन। कोर सेक्टर इन प्लानिंग, इन द प्लानिंग मीन क्या होगा कोर सेक्टर का? एग्रीकल्चर, डिफेंस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या फिर सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री? आंसर क्या होगा? सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीर উপরে আমাদের এটাকে বলা হয় কোর সেক্টর ইন দ্য প্ল্যানিং মিন। কোর সেক্টর ইন দ্য প্ল্যানিং মিনস হচ্ছে সিলেক্টেড বেসিক ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কি কি পড়ছে দেখো, এই ইন্ডাস্ট্রি, দিস ইন্ডাস্ট্রিজ আর হচ্ছে আয়রন এন্ড স্টিল, কোল, সিমেন্ট, ফার্টিলাইজার, ইলেকট্রিসিটি, ক্রুড অয়েল, ন্যাচারাল গ্যাস, রিফাইনারি প্রোডাক্ট, এগুলো সবগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের কোর ইন্ডাস্ট্রি বা কোর বেসিক ইন্ডাস্ট্রি। ঠিক আছে, গোল অফ থার্ড 5 year প্ল্যান। তাহলে থার্ড 5 year প্ল্যানের গোল কি ছিল? থার্ড 5 year প্ল্যানের গোল কি ছিল? आंसर কি হবে? आंसर হয়ে যাচ্ছে দেখো सेल्फ सफिशिएंट एंड टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड। वो यूएसए वाला स्टोरी सुनाया था मैंने पहला वीडियो में कि कैसे यूएसए ने हमको सुअर के खाने वाले गेहूं को भेज दिया गया था हमें, तो हम लोगों का आत्मसम्मान लगा और हम लोगों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो वाला पहला आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 year प्लान। 5 year प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 year प्लान का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, फिफ्थ 5 year प्लान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? मैंने पहले ही थोड़ा देर पहले ही बताया था, गरीबी हटाओ। तो यहाँ पर गरीबी हटाओ कौन सा होगा बताओ? आंसर होगा पॉवर्टी रिमूवल। आंसर क्या होगा? पॉवर्टी रिमूवल, यानी कि गरीबी हटाओ। ये देखिए फिफ्थ 5 year प्लान 1974 से लेकर 79, ये डेट याद रखिएगा, 1974 से 75, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ,
इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने स्लोगन दिया था। इस प्लान का एम क्या था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इनकम एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द पोर, improve access to basic amenities like healthcare, education, housing. प्लान फोकस में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीजें इस प्लान में था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान was the emergency claimed, new election took place and जनता दल was elected। किस प्लान के द्वारा इमरजेंसी, किस प्लान के टाइम में इमरजेंसी बुलाया गया था, उसके बाद इलेक्शन हुआ और जनता पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया। তাহলে কোন 5 ইয়ার বলছে, কোন 5 ইয়ার প্ল্যানে ইমার্জেন্সি ডাকা হয়েছিল এবং ইলেকশন, নতুন করে জেনারেল ইলেকশন হয়েছিল এবং জনতা পার্টি ইলেকশন জিতেও গিয়েছিল, কোন 5 ইয়ার প্ল্যানে? অ্যানসার কি হবে? অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফিফথ 5 ইয়ার প্ল্যান। অ্যানসার কি হচ্ছে না, ফিফথ 5 ইয়ার প্ল্যান। তাহলে এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হয়েছে জুন 75 during the fifth 5 year plan 1974 to 1979। প্রাইম মিনিস্টার কে ছিল? প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী ছিল। এমার্জেন্সি কতদিন চলেছিল? একদম 21st মান্থ অবধি, ঠিক আছে, 21 মান্থ অবধি এটা চলেছিল, আনটিল মার্চ 1977। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एबोलिशन किस प्लान में दिया गया था? आंसर तब याद हो ही गया होगा, फिफ्थ प्लान। তাহলে आंसरটা কি হলো, পভার্টি অ্যাবলিশন কোন প্ল্যানে দেওয়া হয়েছে না, ফিফথ প্ল্যানে। গরিব ইয়াটা স্লোগান, আমাদের ইন্দিরা গান্ধী সরকার এখানে আমাদের এই প্ল্যান ইয়েটা দিয়েছিল, স্লোগানটা দিয়েছিল। প্ল্যানের এম কি ছিল না, রিডিউস পভার্টি এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট, increase income and economic opportunities, improve the access to basic amenities like healthcare, education and housing। এগুলো আমাদের প্ল্যানে ছিল, এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট, রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিম এন্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন স্কিম রিফর্ম, তো এগুলো ছিল। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, নেক্সট কোশ্চেন আছে 5 years plan that terminated 1 year before the scheduled period। তাহলে কোন প্ল্যানটা আগেই টার্মিনেটেড হয়ে গেছিল? তাহলে আমাদের आंसर কি হবে? আমাদের आंसर হয়ে যাচ্ছে ফিফথ 5 ইয়ার প্ল্যান। কারেক্ট आंसर কি হলো না, ফিফথ 5 ইয়ার প্ল্যান। ফিফথ 5 ইয়ার প্ল্যান 1974 থেকে 79 অবধি ছিল, বাট এটা কি হলো 74 থেকে চলেছিল 78 পর্যন্ত, এটা 78 পর্যন্ত চলেছিল এবং 78 এ জনতা দল সরকারে এসেছিল, 78 तक चला था, ठीक है। इसके बाद in which one of the year rolling plan was operation in India। rolling plan कब हुआ था? आंसर क्या है, 1978 থেকে 79 में। rolling plan was introduced in India in 1978 to 79 during the Janata Party government। it was the approach of planning replacing the traditional 5 years plan। यानी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो 79 तक चलने वाला था, लेकिन उसको बीच में टर्मिनेट कर दिया गया और 78 में नया सरकार आ गया, जनता दल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोलिंग प्लान ले लिया। रोलिंग प्लान मतलब एक साल करके चलेगा, तो 8 से लेकर 79 तक ये चला रोलिंग प्लान। यहाँ पर फीचर्स क्या दिया गया है कि नो फिक्स ड्यूरेशन हो गया, इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं था, कंटिन्यूअस प्लानिंग प्रोसेस था, एक साल करके। फिक्स एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस, यानी कि एक यहाँ 78 से मतलब मान लो शुरू हुआ था 79 तक, ठीक है, एक साल में आप देखोगे कि अगर तरक्की हुआ तो ठीक है, उसी प्लान को हम कंटिन्यू करेंगे, अगर तरक्की नहीं हुआ तो हम लोग दूसरे प्लान बनाएंगे, ये एक खासियत था। एम्फसाइज द प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम में, ठीक है। इसके बाद प्लान हॉलीडे, क्वेश्चन नंबर 25 में हो गया प्लान हॉलीडे।
प्लान हॉलिडे रिफर्स टू द पीरियड। आंसर क्या होगा? प्लान हॉलिडे कब हुआ था? तो सबसे पहले तो कब हुआ था ये देखना पड़ेगा। तो आंसर बताओ। आंसर हो गया प्लान हॉलिडे 66 से 69 के बीच, यानी कि 61 से लेकर 66 तक आपका थर्ड प्लान था। थर्ड प्लान था, उसके बाद ही प्लान हॉलिडे चालू किया गया। তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের 66 থেকে 61 থেকে 66 হচ্ছে থার্ড প্ল্যান। এই থার্ড প্ল্যানের পরেই আমাদের শুরু হচ্ছে প্ল্যান হলিডে। প্ল্যান হলিডে নেওয়ার কারণ কি ছিল? না আমরা আগেই ডিসকাস করেছিলাম কি ওয়ার উইথ পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হয়ে গেছিল, ইকোনমিক ইনস্টেবিলিটি ছিল। 1962 তে ইন্দো চায়না ওয়ার হয়েছিল। হ্যাঁ, ইন্দো চায়না ওয়ার হয়ে গেছিল 1962 তে। আমাদের ফুড শর্টেজ হয়ে গেছিল, ডট হয়েছিল, ঠিক আছে, पॉलिटिकल चेंजेस হয়েছে। तो যার ফলে আমাদের ये सब जो इन सब चीजों के कारण प्लान हॉलिडे लिया गया था। इसके बाद रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज जो पिछड़ा हुआ कंट्रीज है, उसके लिए जो रोलिंग प्लान का सजेशन किसने दिया था? जी मैड्रल ने इसका सजेशन दिया था। इनका जो बुक था, इन हिज 1968 के बुक में एशियन ड्रामा, इस बुक में ए इंक्वायरी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ नेशन, इसमें इन्होंने ये सजेशन दिया था। ठीक है, इसका जो अप्रोच था क्या था? कंटिन्यूअस प्लानिंग हुई, कंटिन्यूअस प्लानिंग एंड रिव्यू, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी था, प्रायोराइज आप लोगों को प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, एम्फसाइज ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ये सारे चीजें था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में इन सारे के बारे में, रोलिंग प्लान के बारे में ये सब चीजें बोला गया, देखते हैं। ए प्लान फॉर सिंगल ईयर, a plan that is determined for 3, 4 and 5 years, review every year according to the necessities of the economy, prerequisite plan for 10, 15 and 20 years of these। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट होगा? आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, चारों के चारों ही सही है। So rolling plan is a type of economic planning that can be planned for a single year। तो ये single year के लिए है। Plan determined if 3, 4 and 5 years, medium term planning था। Its review every year according to the necessities of the economy, regular view किया जा सकता था और adjustment भी किया जा सकता था। Can be prerequisite planning for a longer period। longer period के लिए हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं। कितना लॉन्गर? 10 साल, 15 साल या 20 साल तक हम लोग इतना सालों तक इसका हम लोग प्लान कर सकते थे। ठीक है, रोलिंग प्लान का यही एक फायदा था। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, द कोर्स स्लोगन। अब यहां पर बोला गया स्लोगन और सेवेंथ प्लान कौन सा होगा? सेवेंथ प्लान का स्लोगन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये होगा आपका आंसर। फूड प्रोडक्ट एंड फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो 7-5 प्लान का फोकस देखिए, फोकस क्या था? हम लोग का फूड था, फूड इंश्योरिंग प्रोग्राम, फूड द इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंट। वर्क में था, देखिए, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्टिविटी में इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन वेरियस सेक्टर। जो 7-5 प्लान था, एम टू अचीव 5% एनुअल ग्रोथ रेट इन जीडीपी विथ एन एम्फसाइज ऑन सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो 7th प्लान का जो एम अचीव करने का एम था वो था 5%। ठीक है, ग्रोथ रेट इन जीडीपी के ऊपर 5% ग्रोथ रेट था। इसका एम्फेसाइज में सोशल जस्टिस था, गरीबी दूर करना था, प्लान को विकेंद्रीकरण करना था, ये सारी चीजें यहाँ पर था।
Which one of the next question होगा, which one of the following the 5 years plan recognize the human development, recognize the human development, इसको ध्यान रखिए, human development as the core of all development efforts। कौन प्लान में ये लिया गया था human development को? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, 8 5 years plan। आंसर होगा डी, 8 5 years plan। देखिए इन 8 5 years plan में क्या बोला गया है कि 8 5 years plan कब हुआ था? 1992 से 1997 तक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। Was the first plan to explicitly recognize human development as the core of all development, इसको बोला, इसको लिया गया था। It emphasized the importance of investing in human resources such as education के ऊपर ध्यान दिया गया था, हेल्थ केयर के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर, to achieve the sustainability development and economic growth, ठीक है। 8 5 years plan approach was guided by the following principle। कौन से प्रिंसिपल के द्वारा गाइड होता था? ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि एजुकेशन चाहिए, वेलफेयर चाहिए, हेल्थ, ये सब चाहिए। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये भी चाहिए। एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, इनको भी चाहिए, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप वाले को, जो लोग विलुप्त होने के कगार पे है, वो सारी चीजें। और डिसेंट्रलाइजेशन तो होना ही होना है, प्राइवेट आपको, और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, सबका पार्टिसिपेशन, ठीक है, सबका सहयोग और विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, which 5 year plan operate in India during April 2000 April 1992 से मार्च 1997? कौन सा प्लान था ये वाला? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8 प्लान। आंसर होगा 8 प्लान। चलिए 8 प्लान में ओवरव्यू क्या होगा? हम लोग का 1992 से लेकर 1997 तक फोकस का क्या था? कोई ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। ऑब्जेक्टिव, गरीबी हटा, गरीबी दूर करना हो गया, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना हो गया, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देना हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि विच 5 year प्लान इन इंडिया गिव द एम्फसाइज ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस प्लान में लिया गया था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 9th 5 year प्लान। आंसर क्या होगा? 9th 5 year प्लान। देखिए 9th 5 year प्लान 1997 से लेकर 2002 तक। गिव द एम्फसाइज ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसमें लिया गया था व्हिच एम, इसका एम क्या था? टू प्रोमोट डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स को मजबूत करना होगा, राज्यों को मजबूती प्रदान करना होगा। अच्छा, ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो हम लोग का म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट है, आपका पंचायत है, इन सबको ज्यादा से ज्यादा आपका पार्टिसिपेशन में भाग लेना होगा इन द प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे आकर भाग लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक तो बोला गया की फीचर्स ऑफ द 9th प्लान अप्रोच टू फेडरलिज्म इंक्लूड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू स्टेट्स को बहुत ज्यादा छूट दिया गया। इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब का विकास किया गया इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू इंटरस्टेट कोऑपरेशन, तो इंटरस्टेट कोऑपरेशन को बढ़ाया गया ज्यादा से ज्यादा। रीजनल प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया गया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 year प्लान द वुमेन्स कंपोनेंट, यानी कि वुमेन्स पावर को कौन से प्लान में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 32 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 32 में कौन से प्लान में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया? ना सी 9th 5 year प्लान में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वुमेन्स कंपोनेंट पे ऊपर ध्यान दिया गया। क्या बोला गया देखो,
9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 तक एंड 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 तक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था? फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, और जेंडर मेनस्ट्रीम, जेंडर मेनस्ट्रीम, इसके ऊपर ध्यान दिया गया था, ठीक है। द वुमेन्स कंपोनेंट प्लान was new initiative introduced during this period, aiming to improvement the status of women in society throughout the empowerment। তো এখানে কি বলা হচ্ছে না, এই প্ল্যানে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টের উপর, মহিলাদের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, মহিলা সশক্তিকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে মহিলারা আরো বেশি করে সোসাইটিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এম্পাওয়ার করতে পারে। Women's empowerment was a groundbreaking effort as it was the first time in India's planning history that a separate component focused exclusively on women's empowerment। WCP's objective include, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका वुमेन्स कंपोनेंट प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? जेंडर मेनस्ट्रीम इन ऑल सेक्टर्स एंड प्रोग्राम, improving access to education, healthcare and economic opportunity for women। तो महिलाओं को एक्सेस देना पड़ेगा, किसका? एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। एड्रेसिंग क्या किया जाएगा? जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदाभेद है उसको कम किया जाएगा। वायलेंस को कम करने के बाद यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट नंबर, कौन सा 5 ईयर प्लान में बोला गया कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 33 में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। आंसर क्या होगा? आंसर हो गया आपका 9th 5 ईयर प्लान। आंसर हो गया आपका 9th 5 ईयर प्लान। Growth with social justice and equity plan aim to achieve rapid economic growth, reduce the poverty and inequality, to promote social justice and equity, empower vulnerable groups including women and marginalized communities। National Horticulture Mission was launched in which of the following? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस प्लान के तहत लिया गया था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस प्लान के तहत बनाया गया? आंसर होगा 10th 5 ईयर प्लान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 10th 5 ईयर प्लान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th 5 ईयर प्लान, which of the following sector account for the maximum combined of central, state and UT expenditure? कौन से प्लान में, 11th 5 ईयर प्लान में कौन से जो सेक्टर थे, इन चारों जो सेक्टर थे, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंबाइंड सेंट्रल, स्टेट एवं यूटीज का एक्सपेंडिचर किसमें था? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हम लोगों का सोशल सेक्टर। आंसर होगा सोशल सेक्टर। तो ये जो सेक्टर इंक्लूड, इसमें कौन सा सेक्टर था? सोशल सेक्टर। देखिए, एजुकेशन था, हेल्थ था, फैमिली वेलफेयर था, सोशल वेलफेयर था, न्यूट्रिशन था, हाउसिंग था, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब के ऊपर ध्यान देने के बारे में बोला गया। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान का कोर कॉन्सेप्ट क्या था? 11th 5 ईयर प्लान का आंसर क्या होगा? आंसर होगा फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 ईयर प्लान का कोर कॉन्सेप्ट क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, 9% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट था इसका। इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, बेनिफिटिंग all sections of society, especially the poor and marginalized। The plan
focused on increasing the employment opportunity, reducing poverty and inequality, improving the access to education, health and basic service, promoting the social justice and equity. ठीक है. Next 37 number, inclusive growth as initiated in 11th 5-year plan does not include one of the following. এদের মধ্যে কোনটা 11th 5-year প্ল্যানে নেওয়া হয়নি? आंसर কি হবে? না, आंसर হচ্ছে আমাদের strengthening of capital market. Strengthening of capital market इसको यहाँ पर नहीं लिया गया था. ठीक है. Inclusive growth initiated the in the 11th 5-year plan फोकस क्या किस में था? एक नंबर में reducing the poverty and inequality, बी में था expanding opportunities for employment or reducing the gender inequality. Next, since the start of planning in India, the total number of years not covered by any 5-year plan, इसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा 6. इंडिया फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट होचे 1951 से लेकर स्टार्ट हुआ और 2017 तक ये पूरा चला. ठीक है. तो बीच में कौन से ईयर को यहाँ पर नहीं लिया गया, इसका काउंटिंग यहाँ पर बोला गया. 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया. ठीक है, टोटल 6 हो गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39. The planning process in the industrial sector in India has assumed a relatively less important position in the 1990s as compared to that in the earlier period. Which one of the following is not true in this regard? यानी कि क्या बोला गया है कि प्लानिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इनका जो प्लानिंग प्रोसेस था has assumed a relatively less important position in the 90s. मतलब 90 के दशक में इसका जो इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया as compared to the earlier period से थोड़ा सा कम हो गया. Which one of the following is not true in this regard? नीचे दो ऑप्शन में से कौन सा गलत है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी. The nation's priority have shifted away from industrial development to rural development. तो ये तो पूरा गलत हो गया ना. 90s में एलपीजी मॉडल लिया गया था. 90s में तो एलपीजी मॉडल लिया गया था. तो एलपीजी मॉडल मतलब क्या? बाहर से विदेशी कंपनियां भारत में आएगा और फैक्ट्रीज खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. एफडीआई तो यहीं से आएगा ना. तो हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि हम लोग इंडस्ट्री को छोड़कर रूरल में चला गया. ऐसा तो नहीं है. तो ये जो ऑप्शन था ये पूरी तरह से गलत हो गया. क्वेश्चन नंबर 40. प्लानिंग फ्रॉम बिलो मतलब एकदम नीचे से शुरू किया जाएगा. ठीक है, नीचे से ऊपर तक. यानी कि यहाँ सेंटर बैठा हुआ है, तो प्लानिंग फ्रॉम बिलो मतलब सेंटर एकदम नीचे जो बेसिक लोग है ग्राउंड में, इनके लिए प्लानिंग करेगा. इसको क्या बोला जाता है? तो आंसर क्या होगा? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, विकेंद्रीकरण. ठीक है, इसका कैरेक्टराइज क्या था? इसका कैरेक्टराइज लोकल लेवल प्लानिंग में, लोकल में जितने भी चीजें था, जैसे कि कहीं पे म्यूनिसिपैलिटी है, कहीं पे पंचायत, गांव में पंचायत है, तो इनका जो खुद का प्रॉब्लम है उसका लोकल लेवल में प्रॉब्लम उसको प्लानिंग करेगा ना. सेंटर में बैठ के थोड़ी प्लानिंग होगा वहां से, केंद्र से, दिल्ली से. सही है ना. तो लोकल लेवल प्लानिंग था. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, ये सारे चीजें था. नेक्स्ट क्वेश्चन.
In the context of India's 5-year plan, a shift in the pattern of industrialization with lower infrastructure begins. Pattern of industrialization, lower infrastructure begins. कब यहाँ से शुरू हुआ था? कौन से प्लान में? आंसर हो गया आपका 6th प्लान. आंसर हो गया आपका 6th प्लान. In the context of 5 years plan में a shift in the pattern of industrialization with lower infrastructure begins. लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर से कहां से शुरू हुआ? किस प्लान में? प्लान नंबर 6. क्या एम्फसाइज था? ग्रेटर क्या एम्फसाइज था? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बनाना था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तैयार करना था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को तैयार करना था, डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाना था. ये सारे इनका मेन एम्फसाइज व फोकस सब कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया. ये बुक किसने लिखा? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया ये बुक किसने लिखा? तो आंसर क्या होगा? एम विश्वेश्वरैया. एम विश्वेश्वरैया. इलेवेंथ 5-year प्लान. 11th 5-year प्लान एम्फसाइज ऑन. 11th 5-year प्लान में क्या एम्फसाइज किया गया? आंसर क्या होगा? बोलो. आंसर होगा फर्स्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. फर्स्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5-year प्लान में. कब से कब चला था? 2007 से लेकर 2012 तक ये चला था. एम क्या था? फर्स्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ विद फोकस ऑन. क्या क्या फोकस था हम लोगों का यहाँ पर? एक्सेलरेटिंग बोला गया कि एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक जो ग्रोथ था उसको बढ़ाना होगा टू 9% तक एनुअल जीडीपी के हिसाब से. ठीक है. इंश्योरिंग द इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो जो पूरे सेक्शन में सभी सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब महिलाएं सबके ऊपर बेनिफिट्स करना है सबका, स्पेशली फॉर द पोर एंड मार्जिनलाइज. इन सभी चीजों को देखा गया था. क्वेश्चन नंबर 44. In India, which of the following 5-year plan was launched a focus on the sustainable growth? Sustainable growth किस प्लान का फोकस हुआ करता था? किस प्लान का फोकस था? सस्टेनेबल ग्रोथ 12th 5-year प्लान का ये फोकस था. 12th 5-year प्लान का फोकस था सस्टेनेबल ग्रोथ. प्लान का एम्फसाइज क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर आया गया, क्लाइमेट चेंज को लेकर आया गया, रिसोर्स एफिशिएंसी को लेकर लाया गया और इंक्लूसिव ग्रोथ को लाया गया. अब एक मैचिंग था. मैचिंग है क्या कि फर्स्ट प्लान से यहाँ पर प्लान दिया गया है, यहाँ पर प्रोग्राम. किस प्लान के द्वारा किस कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो हम आंसर पे चलते हैं. आंसर में क्या था? फर्स्ट प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया 1952 में. सेकेंड प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को लॉन्च किया गया, फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री को. थर्ड प्लान में किया गया एक्सपेंशन ऑन बेसिक इंडस्ट्री, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया गया. फोर्थ प्लान में अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, एम था सेल्फ सफिशिएंट. और पांचवी प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसको फोकस था बेसिक एमिनिटीज का, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. तो ये आपका पूरा का पूरा 45 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था. ठीक है. 45 क्वेश्चन यहाँ दिया गया. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कितना नंबर आपको 45 में कितना नंबर आपको मिला. ठीक है. तो ये अपने आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. हैव अ गुड डे.